Welcome to Boral News. Dimasa Student Union demands high-level inquiry into abduction and killing of Santosh Hojai. The Dimasa Students Union (DSU) on Friday demands to hand over abduction and killing case of militant-turned-contractor Santosh Hojai to national agencies like Central Bureau of Investigation or National Investigation Agency for further inquiry following recovery of the body on Thursday evening beside NH27 road, around 35 km away from his home at Lailing Reserve Forest under Langting Police Station in Dimahasao. The body was found buried in mold of earth and later it was dug out in presence of executive magistrate. Kidnapping and killing of innocent person like Santosh Hojai, businessman and a former DHD leader and a father of 3 children is really a matter of uprooting peace in a district. Such unfortunate incident that had happened when a nationwide lockdown is going on, during which the movement of all movable objects are restricted, said Pramit Singh, General Secretary of DSU. We stand bravely against the inhuman act done by the unidentified miscreants and demand the district administration to look into the matter deeply and request the higher authority for the strong investigation and to book the culprit as per law and request the authority to hand over the case to the national agency like CBI, NIA for further inquiry, Sang-yung added. Your sacrifice will not go in vain. Your spirits of fighting and patience to bear of every brutality of tortures will encourage of our new generation. We pay homage to you today and definitely Almighty God Shivarai listens our prayers and one day the killers of you will disclose themselves about a kidnapping, killing and who instigated this crime. Former chairman of Dimahalam Dauga DHD, Dilip Nunisa posted in social media. Meanwhile, the Guwahati High Court on Thursday directed the Assam Director General of Police to submit detailed report of the incident on Monday and hearing of the case to be done on the same day. Petitions have also been filed before Assam State Human Rights Commission and Assam Public Grievances Commission seeking investigation. Hojai's body was brought to Haflong Civil Hospital for its post-mortem, although it has been referred to Silchar Medical College on Friday since it could not be done here due to shortage of equipments required in post-mortem in view of nature of death, which also required a forensic test as stated by the hospital authority. On its way to Silchar, hundreds of public in Harangazao had stopped the police vehicles escorting the body and raised slogans like Dimahasao Police High High. Other hand, failure of police over the past few days had met with considerable public criticism in the district. Around 6 p.m. on 24th April, 5 persons burst into the residence of Hojai at Damadi Hawar village under Harangazao police station of Dimahasao district and forcibly pulled him inside a white bolero. Immediately his wife went to police station to lodge a missing complaint, but the officer in charge turned her away, saying that her husband will return. 2 days after the incident, locals had gherao the police station seeking an answer about how people could get kidnapped amid the lockdown and to press for registering the complaint. Family of Hojai has received no random call from the abductors, nor the police could give reason behind the abduction and murder. The body is expected to be cremated on Saturday after forensic tests, and family members and relatives of Hojai are eagerly waiting for the body to arrive.
Meanwhile, Dilip Kumar Deb, IPS, DIG, Southern Range has visited Dima Hasao to inquire the kidnap and murder case of Hojai. Efforts to contact remain futile as all senior police officials are out of station or diverted the call. सबसे पहले जो दिमा हासाओ में एक छोटा सा बिजनेस कॉन्ट्रैक्टर प्लस बिजनेसमैन जो लेट संतोष होजाई है, उनका मर्डर को लेके हम लोग पूरा दिमा हासाओ का वासी इसको टोटली कंडेम करता है। और साथ ही साथ जो भी इसमें पास्ट मिसक्रेंट्स, जो भी इसमें जो भी ये मर्डर किया है, जो भी किडनैप करके मर्डर किया है, इसको एज पर लॉ ऑफ द लैंड उसको सजा, खरी से खरी सजा देने के लिए हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, गवर्नमेंट ऑफ असम से हम लोग सरकार से विनती करता है, रिक्वेस्ट करता है। और साथ ही साथ अभी जो इतना मोर देन 100 आवर्स और मोर देन 100 किलोमीटर जहां से विक्टिम किडनैप होता है, उससे 100 किलोमीटर दूर जाके पूरे 5 दिन बाद उसका डेड बॉडी मिलता है। तो ये एक बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। और साथ ही साथ हम लोग लॉ एंड ऑर्डर से भी हम लोग बहुत ही इससे बहुत ही नाराज है, क्योंकि अभी पूरा नेशन वाइड लॉकडाउन है। और नेशन वाइड लॉकडाउन पे एज पर MSA गाइडलाइंस सिर्फ 2 ही व्यक्ति गाड़ी पे जा सकते हैं। तो उसमें पूरा हारंगजाव में पूरा एज पर जो अभी रिलायबल सोर्सेज से खबर मिला कि वो पूरा गाड़ी हारंगजाव दिन भर था, फिर भी जो मिसक्रेंट्स है वो किडनैप करके पूरा मोर देन 100 किलोमीटर वो ले जाके ऐसा घटना कर दिया। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। और एज पर गवर्नमेंट अभी सबसे कह रहा है कि स्टे होम। तो अभी आर वी रियली सेफ एट होम, बिकॉज द विक्टिम वाज किडनैप फ्रॉम राइट फ्रॉम हिज नेटिव प्लेस, नेटिव होम। सो आवर बिग क्वेश्चन इज दैट आर वी रियली सेफ एट होम? सो we totally condemn this incident and request the government to deal with this and investigate with the highest institution, चाहे वो CBI हो या NI हो। इससे जल्द से जल्द इंक्वायरी करके जो भी इसमें इन्वॉल्व है इसको खरी से खरी सजा देने के लिए हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं। और साथ ही साथ हम लोग बहुत ही नाराज है, क्योंकि यहाँ पे एज पर जितना भी रिपोर्ट है लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से आज भी यहाँ भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। कल भी वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट का हेड ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है वो भी नहीं था। तो ये एक बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। एंड वी रिक्वेस्ट बोथ हम लोग का सेंट्रल स्टेट और यहाँ का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी कि करी से करी और जल्द से जल्द ये जो भी मर्डर हुआ है इसके ऊपर इंक्वायरी करके जल्द से जल्द रिपोर्ट हम लोग को मिलना चाहिए। तो अभी कल रात से यहाँ जो कंपोस्ट बॉडी है लेट संतोष होजाई का यहाँ पे है और ऑटोप्सी रिपोर्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे इतना फैसिलिटीज नहीं है। तो फिर भी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से कोई भी नहीं आया है। फिर भी हम लोग का एनसीएल ऑटोनोमस काउंसिल का जो अभी जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो लोग यहाँ पे आके वो सम अरेंजमेंट करके अभी जो कॉज ऑफ डेथ यहाँ पे पोस्टमार्टम नहीं हो रहा है, ऑटोप्सी रिपोर्ट नहीं हो रहा है, तो अभी ये सिलचर इसको बॉडी भेजेंगे, वहां से फिर फॉरेंसिक लैब पे भेजेंगे। तो ये जल्द से जल्द इसका रिपोर्ट, इंक्वायरी रिपोर्ट हम लोग को जल्द से जल्द ये आम जनता का ये अगर ये रिपोर्ट नहीं मिलता है तो आम जनता लॉ एंड ऑर्डर से ये भरोसा उठ जाएगा। आज का दिन हम लोग के लिए बहुत दुख है। दिमा हासाओ जितना भी पब्लिक है हम लोग को बहुत दिल जरूरत हुआ और बहुत दुख के साथ में हम लोग बोलता है आज में जो इंसिडेंट हुआ यहाँ में हम लोग जो पोस्टमार्टम के लिए आया है यहाँ में करने नहीं सका है। लेकिन हम लोग उनको जो अभी का सिचुएशन
जहाँ में कोविड-19 हम लोग को इतना डर के बैठा है। सरकार घर में बैठो बोलता, लेकिन हम लोग को घर में बैठ के क्या है, हम लोग को उठाई के इससे ले जाता। क्या एडमिनिस्ट्रेशन है जो हम लोग को अपना जगह में हम लोग सेफ नहीं है। हम लोग ये बीमार से भी सेफ नहीं है और ऊपर से घर में बैठ के भी सेफ नहीं है। क्या लॉ एंड ऑर्डर है, या क्या एडमिनिस्ट्रेशन है? इसी तरह घर में बैठ के हम लोग उनको उठा के ले जाएगा तो हम लोग कहाँ में बैठेगा, किसके साथ जाएगा, कहाँ में जस्टिस मिलेगा, कहाँ में हम लोग को शांति से रहने मिलेगा? हम लोग दिमा हासाओ का आदमी लोग बहुत दुख के साथ बोलता है, जो हम लोग के साथ में जो हुआ बहुत खराब हुआ, इंसाफ ही हुआ और हम लोग को टॉलरेट नहीं करेगा। इस समय में जब गाड़ी बंद हुआ उसी टाइम में 5 जन बिना नंबर से, ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं मालूम नहीं होने से कैसे पार होता दिमा हासाओ, इस पार से उस पार कैसे जाने सका? इतना उसको जो बदन में इतना खराब से हुआ देख के भी हम लोग का दिल कभी भी शांति नहीं होगा। स्पेशली जितना भी माँ है, जितना भी बेटा बेटी उनको उसको बच्चा फैमिली के लिए कितना दुख का बात है। ये मोरा तो मोरा, बीमार से मरने से तो एक शांति होता था, मरने से भी, लेकिन इसी तरह हम लोग उनको कभी हम लोग टॉलरेट नहीं करेगा। बहुत खराब तरीका से मरा है, बहुत खराब तरीका से टॉर्चर किया है, ये हम लोग को अच्छा नहीं लगता है, ये नहीं मानता हम लोग। दिमा हासाओ का एडमिनिस्ट्रेशन ये इंसिडेंट में जो इन्वॉल्व है उनका इमीडिएटली अरेस्ट करो और एक्शन लो। जितना भी ऑर्गेनाइजेशन ने अपील किया वो पूरा अनहर्ड हो के है। ये कुछ वो डस्टबिन में फेंका हुआ है, कहाँ में वो चीटी का एक्शन, हम उनको वो एक्शन चाहिए। आज में जो यहाँ में पोस्टमार्टम के सामने में जो इकट्ठा हुआ उसको बारे में तो सबको भी मालूम है। जो ऐसा इंसिडेंट जो हुआ, जैसा इसको तरीका से इसको डेड बॉडी मिला, इसको ऐसा लगता है इसको तो मर्डर ही किया है। इसमें जो आदमी जो मिसक्रिएंट्स इन्वॉल्व है उन लोग को इन्वेस्टिगेशन करके सख्त से कड़ी से कड़ी सजा उन लोगों को मिलना चाहिए। इसके लिए हम लोग का जाजी के नाइशो होसम जेएनएस की तरफ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफ असम को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी हम लोग रिक्वेस्ट करता कि इसको रिजल्ट पॉजिटिव रिजल्ट आना चाहिए। इसको रफा दफा करके इसको मतलब हासब करने का कोशिश ना कीजिए। ऐसा हासब करने की कोशिश करने से पब्लिक का गवर्नमेंट के ऊपर, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर एक जो विश्वास है वो हार जाएगा, वो टूट जाएगा। ये इंसिडेंट ये खाली नहीं, पहले भी ऐसा हुआ। मतलब जो इंक्वायरी करा था जुडिशियल मजिस्ट्रेट वो भी जो भी होने दो, लेकिन सेक्रेटरी लेवल में जो भी कमिश्नर लेवल में करता, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आता। तो इसी तरह मतलब हम लोग को दिमा हासाओ को पब्लिक को ऐसा एक उल्लू मतलब ऐसा ना बनाइए। इसको सही से अगर आप लोगों हम लोग को ऊपर प्रेम है, हम लोग को ऊपर अगर आप लोग को अच्छा भाव है होने से आप लोग ऐसा बिहेव मत कीजिए, ऐसा बोल के हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नमेंट को बोलने मांगता। तो जेएनएस की तरफ से इतना ही बोलेंगे।